In the name of Allah, I am going to deliver social studies lecture of our environment for class 7th. Dear students, Assalamu alaikum. You know that we are reading chapter number 4, that is air, and today's our topic is moisture. Moisture means humidity. How much water possesses air, how much water catches air, that is called humidity. When water evaporates from land, the sun's rays they falls on land as well as on oceans. So by the these by the sun's rays we receives two types of energy, that is heat energy and light energy. When this heat energy it evaporates, it evaporates this water from water bodies, and it evaporates it becomes water vapors. After evaporation, this after evaporation of water, these the water evaporated water it becomes they becomes water vapors. They becomes water vapors, and these water vapors they fly, they rises towards the sky. They rises upwards. When they catch more and more water, and at a time, at a level, on higher altitudes, these water vapors becomes when they become heavy, these become clouds. When they become more heavy, they do not move, and they starts to drop in the form of precipitation. And the three forms of precipitation are they are the snow, sleet, and hail. They falls either in snow or sleet or in hail on the ground. Moisture in the air at any time is known as humidity. Moisture in the air at any time is known as humidity. What this means? When the air is full of water vapor, we call it a humid day. When the air is full of water, when the air is full of water or full of vapor, we call it humid day. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it becomes more and more humid. On a humid day, clothes take longer time to dry, and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. यानी जो हवा में नमी होती है, जब हवा ज़्यादा गर्म हो जाती है तो इसमें ज़्यादा वेपर पकड़ने की सलाहियत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो ये ज़्यादा वेपर पकड़ती हैं, ज़्यादा जो ये इवापोरेशन होती है, ये हवा में ज़्यादा ये वेपर्स होते हैं. हम इस दिन को ह्यूमिड डे कहते हैं. उस दिन में क्या होता है, जब हवा में ज़्यादा वेपर्स होंगे तो उस दिन में एक तो अगर हम कपड़ों को सूखने के लिए डालेंगे बाहर, या ना उनको ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में, नंबर एक. नंबर दो, हमारे जिस्म में से पसीना भी नहीं आसानी से पसीना भी नहीं आता है. कोई काम करने पर, दौड़ने पर आसानी से पसीना भी नहीं आता है. क्यों? क्योंकि हवा में नमी होती है, हवा में ज़्यादा वेपर्स होते हैं, तो उसमें वो सलाहियत ज़्यादा नहीं होती है कि वो कपड़ों को सुखाए, कपड़ों से खींचे वो गीलापन, या हमारे जिस्म से निकाले ये पसीना. उसमें वो सलाहियत कम होती है उस वक्त, क्योंकि उसमें नमी मौजूद होती है, ह्यूमिडिटी मौजूद होती है, वेपर ज़्यादा होते हैं. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, so it becomes more and more humid
On a humid day, clothes take longer time to dry, and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. When the water vapors rises, when these water vapors they rises, it starts cooling on a state. These starts cooling condense. The water vapors condenses, causing formation of droplets of water. When these vapors condense, they form droplets of water. These vapors form droplets of water after condensation. Clouds are just masses such as water droplets. These clouds are just masses of droplets. When the droplets of water become heavy, too heavy to float in the air, then they comes down as precipitation. When they do not float in the air, because they become heavy, how they become heavy? Because they have more vapors within them, so they do not float. When they do not float, they become heavy. They starts to fall. They starts to fall on the ground in the form of precipitation. Just जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई. कभी कभी हमने जहाज़ों को हवा में चलते हुए देखा होगा, तो हमने उस जहाज के पीछे एक लंबी वो हमने एक उसकी वो दुम बनती हुई देखी होगी. Jet planes flying in the sky have a white trailer behind them. ये क्या है? White trailer उनके पीछे जो बनती है, the moisture from their engines condense. जो उनके उस इंजन पे मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है. We see the trails of this condensed moisture from some time when there is no air moment to disturb it. जब वहाँ पे हवा नहीं होती है, वो इस ट्रेल को डिस्टर्ब नहीं करती है, तो हमें वो दुम दिखती है. फिर वो जल्द ही गायब हो जाती है, क्योंकि जो हवा होती है वहाँ पर वो उसको डिस्टर्ब कर देती है. Precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. जो ये precipitation है, ये जमीन पे आ जाती है liquid form में, हम इसी को rain कहते हैं, बारिश कहते हैं. Most of the ground water comes from rain water. जमीन पे जो ज्यादा ये पानी होता है, तो ये रेन वाटर से ही हासिल हो जाता है. प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर. दरख्त ज्यादा हमें ये मदद करते हैं ये पानी जमा करने में. When trees on the hillsides are cut, जब हम पहाड़ों पे या ऊंची जगहों पे जो दरख्त होते हैं, जब हम इनका कटाव करते हैं, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बियर माउंटेन्स, तो ये पानी, बारिश का पानी इन पहाड़ों से जल्द ही नीचे की जानिब चला जाता है. इसको आसानी हो जाती है नीचे की जानिब चले जाना. और उस सूरत में क्या करता है? इट कॉजेज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज. तो जो भी जगह इस पहाड़ के नीचे होगी, तो वहां एक बहुत ही सैलाब सी सूरत पैदा होती है, सैलाब पैदा हो जाता है, सैलाब का खतरा रहता है. ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. और जब हम ये देखते हैं मैकेनिज्म की बुनियाद पे देखते हैं, तो 3 किस्म की बारिशें पड़ती है इस जमीन पर. ये कौन सी 3 किस्म है? नंबर फर्स्ट, द कन्वेक्शनल रेन, द ओरोग्राफिक रेन फॉल एंड द साइक्लोनिक रेनफॉल. 3 किस्म की ये बारिशें होती है. नंबर 1 कन्वेक्शनल रेनफॉल, convectional rainfall, and number 2 cyclonic rainfall, and number 3rd is orographic rainfall. तीन किस्म की बारिशें तो इस पे ज़मीन पे पड़नी शुरू हो जाती है. 3 किस्म की बारिशों में, इस बारिश की जो रेनफॉल की 3 किस्में हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, साइक्लोनिक रेनफॉल है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है. जो जब ये वेपर्स इस ज़मीन से, वाटर बॉडी से ऊपर की तरफ चले जाते हैं, कंडेंस होने के बाद फिर वापस ज़मीन पे पड़ जाते हैं, तो उसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं. जब ये पहाड़ों पे
पहाड़ों से ये बरसने शुरू हो जाते हैं ये वेपर्स, तो वहाँ पे वो बियर ये होंगे, माउंटेन्स होंगे, तो एक ये तूफानी सी सूरत इख्तियार करती है, सैलाबी सी सूरत इख्तियार करती है, तो हम उनको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। जब ये पहाड़ों पे चढ़ती है तो वहाँ पेड़ पौधे होंगे, दरख्त होंगे, तो उसको हम जब वहाँ पे ये बारिश पड़ती है तो ये धीमी धीमी सी नीचे की जानिब आ जाती है, या कोई सैलाबी सी सूरत इख्तियार नहीं करती है, धीमी रफ्तार से इस निचले वाले इलाकों की तरफ आ जाती है, तो हम उस वक्त उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इंशाल्लाह मैं ये कल ब्रीफली डिस्कस करूंगा। तो रेनफॉल इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। रेनफॉल जो है वो पौधों के लिए बहुत ही अहम है, पौधों की जिंदगियों के लिए बहुत ही अहम है, एंड एनिमल्स और हमारे इंसानों और हैवानों के लिए भी जरूरी है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, इससे जमीन पे फ्रेश वाटर आ जाता है इस रेनफॉल से। इफ रेनफॉल इज लेस, अगर ये इसमें कमी होगी, रेनफॉल में बारिश अगर कम पड़ेगी, वाटर सिकर्सिटी, देयर विल बी वाटर सिकर्सिटी एंड ड्राफ्ट, तो वहाँ यहाँ पे ये पानी का कहत और खुशकसाली की नौबत आ जाती है इस जमीन पर। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर, अगर ज्यादा होगी, ना ये ज्यादा होनी चाहिए रेनफॉल, ना कम होनी चाहिए, और अगर ज्यादा होगी कम होगी तो आपको पता ही चल गया, तो बता चुका हूं मैं, एक तो कहत पड़ जाएगा, दूसरा मैंने कहा कि पानी की किल्लत ये होगी जमीन पर, अगर कम होगी, अगर ज्यादा होगी या रेनफॉल, तो उस सूरत में भी एक नुकसान है। क्या नुकसान है? उस सूरत में सैलाब ज्यादा आएंगे, फ्लड्स टेक प्लेस, तो ज्यादा सैलाब उस सूरत में आ जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए, इसकी मकदार बराबर होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे ये मॉइस्चर इसका लेसन खत्म किया है। इंशाल्लाह आई विल मीट यू टुमारो एंड द सेम टाइम इन द सेम क्लास। और आज हमने ये यहाँ तक खत्म किया है। मॉइस्चर वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इट इज एनफ फॉर टुडे। गुड बाय, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।